پہاڑوں کی ٹھنڈی ہواؤں میں ایک ایسا سچ چھپا تھا جسے دنیا محض وہم سمجھتی تھی۔ کہانی کا پردہ اٹھتا ہے نورا سے، جو اپنے بچپن میں والد کے ساتھ انہی فلک پوش چوٹیوں کو سیر کرنے نکلی تھی۔ نورا کے والد کا فلسفہ عام دنیا سے جدا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ زمین کے راز دیکھنے کے لیے سر کی آنکھ نہیں، دل کی نظر درکار ہوتی ہے۔ ان کا ماننا تھا کہ افسانے جھوٹ نہیں ہوتے، اور ان تاریک گھاٹیوں میں پہاڑی آدمی، ایک دیو کامت مخلوق، آج بھی انسانوں سے دور اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ انہوں نے نورا کو ایک قدیم قصہ سنایا کہ صدیوں پہلے 13 دیو کامت پہاڑی آدمی ایک شادی کی محفل میں شریک ہوئے اور مدہوش ہو کر وہیں سو گئے، وقت کی قید سے بے خبر۔ جیسے ہی صبح کے سورج کا پہلا جادوئی نور ان پہ پڑا، وہ اسی پل سنگے مرمر کی طرح جم کر بے جان چٹانیں بن گئے۔ نورا کے لیے یہ محض ایک لوری جیسی کہانی تھی، کیونکہ اس کے سامنے صرف بے جان پتھر تھے، مگر جیسے ہی والد نے اسے دل کی گہرائی سے دیکھنے کا کہا، چٹانوں کے پیچھے سے اسے ایک عظیم الحصہ سائے کی جھلک ملی۔ وہ دیکھنے میں انسانوں کی مانند ہی دیو ہیکل تھے، مگر ان کے دل انسانوں کے لیے کسی دشمنی سے پاک تھے۔ برسوں کا سفر گزارا اور نورا اب ایک ماہر محقق بن کر اپنی ٹیم کے ساتھ انہی پرانی پہاڑوں کا سینہ کریت رہی تھی۔ 6 ماہ کی مسلسل کھدائی کے بعد بھی ٹیم کے ہاتھ مایوسی کے سوا کچھ نہیں آیا تھا۔ مایوس ہو کر ٹیم کا لیڈر نورا کو مشن ختم کرنے کا مشورہ دے رہا تھا، لیکن نورا کے قدم پیچھے ہٹنے کو تیار نہ تھے۔ اسے اپنے والد کی نصیحت یاد تھی کہ جب دنیا ساتھ چھوڑ دے تب بھی اپنے یقین کا دامن مت چھوڑنا۔ وہ تنہا زمین کھودتی رہی اور پھر اچانک مٹی کی تہوں سے ایک ایسی پراسرار اور دیو ہیکل چیز نمودار ہوئی جس نے سب کے ہوش اڑا دیے۔ سکے کے دوسرے رخ پر اسی پہاڑی سلسلے کو جدید دنیا اپنے مقصد کے لیے تباہ کر رہی تھی۔ ایک نئے اسٹیشن بنانے کے لیے پہاڑ کی چوٹیوں میں بارود بھر دیا گیا اور ایک زوردار دھماکے سے پورا علاقہ لرز اٹھا۔ دھماکے کی دھول جیسے ہی چھٹی، وہاں کام کرنے والے مزدوروں نے دیکھا کہ اندھیری سرنگ سے ایک خوفناک دیو کامت سایہ ان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ مزدور اپنی جانیں بچانے کے لیے چیختے ہوئے بھاگے۔ اس غیر معمولی واقعے نے ملٹری کیمپ میں ہلچل مچا دی اور کمانڈر نے فوری طور پر ایک اعلیٰ سطح کا اجلاس طلب کیا، جس میں نورا کو خصوصی طور پر بلایا گیا۔ وزارت اعظم کے مشیر اینڈریاس نے نورا کا استقبال کیا۔ اجلاس کے کمرے میں جب ویڈیو پلے کی گئی تو اس میں زمین پر دھسے ہوئے دیو ہیکل پیروں کے نشانات صاف نظر آ رہی تھی۔ وہاں بیٹھے حکام اسے محض کسی طوفان کی تباہ کاری سمجھ رہی تھی، لیکن نورا نے ٹوکتے ہوئے 2 ٹوک لفظوں میں کہا کہ یہ نشانات کسی زندہ اور بہت بڑی مخلوق کے ہیں۔ کسی نے اس کی بات پر کان نہ دھرے، مگر اسی لمحے ایک اور لڑکی کمرے میں داخل ہوئی اور اس نے اپنی کیمرے کا وہ منظر سب کے سامنے رکھ دیا جس میں وہ دیو کامت پہاڑی آدمی جیتا جاگتا نظر آ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر پورے ہال پر ایک سکتہ طاری ہو گیا اور سب کے چہرے خوف سے سفید پڑ گئے۔ کہانی اب ہمیں ایک دور افتادہ مٹی کے گھر لے جاتی ہے، جہاں ایک معمر جوڑا شام کی چائے سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اچانک ان کا وفادار کتا کسی اندیکھے خوف سے مسلسل گھراہٹ کرنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتے، ایک زوردار زلزلے نے ان کے پورے گھر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ دونوں نے بھاگ کر تہہ خانے میں پناہ لی۔ جب وہ کچھ دیر بعد زمین سے باہر آئے تو ان کا آشیانہ زمین بوس ہو چکا تھا۔ اس ہولناک واقعے کی اصل حقیقت جاننے کے لیے حکومت نے نورا اور اینڈریاس کو وہاں روانہ کیا۔ سفر کے دوران اینڈریاس نے نورا سے اس کے ماضی کا پوچھا۔ نورا نے اداسی سے بتایا کہ ماں کا سایہ تو بچپن میں ہی اٹھ گیا تھا اور والد زندہ تو ہے، مگر اپنی الگ سوچ کی وجہ سے دنیا سے الگ تھلگ تنہائی کی زندگی گزارتی ہے۔ اینڈریاس نے بھی اعتراف کیا کہ وہ ایک رائٹر بننا چاہتا تھا، مگر حالات نے اسے سرکاری آفیسر بنا دیا۔ باتوں ہی باتوں میں وہ اسی بوڑھی جوڑی تک پہنچ گئی۔ وہاں موجود ایک فوجی کپتان نے انکشاف کیا کہ کوئی ندی عبور کر کے پہاڑوں کی طرف نکل گیا ہے اور 3 کلومیٹر تک اس کے خوفناک پیروں کے نشانات ملے ہیں
जो आगे जाकर यकदम गायब हो गए। बूढ़ी औरत ने कप्तान की बात सुनकर कांपती आवाज में कहा कि रात के अंधेरे में उसने किसी की सिसकियां भरने और रोने की आवाज सुनी थी, जो अचानक हवा में तहलील हो गई। नोरा सोचने लगी कि इतनी बड़ी मखलूक यूं पलक झपकती कहाँ गायब हो सकती है। सारे सबूत नोरा को एक ही रास्ते पर ले जा रही थी, अपने वालिद के पास, क्योंकि इन पहाड़ों के मिजाज को उनसे बेहतर कोई नहीं जानता था। जब वो उनके डेरे पर पहुंचे तो वहाँ दीवारों पर पहाड़ी आदमियों के पुराने खाके और तस्वीरें बिखरी पड़ी थी। नोरा के वालिद ने माजी का एक सियाह वर्क खोलते हुए बताया कि बरसों पहले जब यहाँ पहली बार तामीराती काम शुरू हुआ था, तब भी जमीन से ऐसे ही एक मखलूक निकली थी, मगर हुकूमत ने सच्चाई का गला घोंटकर तमाम सबूत मिटा दिए और उन्हें पागल करार देकर एक तारीख पागल खाने में बंद कर दिया। नोरा ने उनकी आंखों में झांक कर कहा कि अब वो मखलूक फिर लौट आई है। वालिद ने इंकशाफ किया कि हजारों साल पहले ये जमीन उन्हीं पहाड़ी आदमियों का मस्कन थी और अगर कोई इंसान उनसे रिश्ता कायम करता तो उसे इबरतनाक सजा मिलती। सच की तलाश में नोरा अपने वालिद एंड्रियास और कैप्टन को लेकर उसी मकाम पर पहुंची जहां पैरों के निशान मिले थे, मगर फौज वहां तमाम शवाहिद मिटा चुकी थी। नोरा के वालिद वहां मौजूद चट्टानों को एक टिकटकी बांधे देख रही थी। कुछ दूरी पर खड़े कैप्टन और एंड्रियास नोरा से कह रही थी कि तुम्हारे वालिद का जहनी तवाजुन बिगड़ चुका है। खुद नोरा के दिल में भी एक लम्हे के लिए शक ने जन्म लिया कि शायद उसके वालिद कहानियों के असीर हो चुके हैं। वो उन्हें वापसी लाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी, हवा का रुख बदला, एक तीखी बू फिजा में फैली और काली घटाएं छा गई। नोरा ने जैसे ही मुड़ के देखा, उसके सामने कायनात की सबसे बड़ी आंख खुली थी। वहाँ सचमुच एक दियो हेकल पहाड़ी आदमी पहाड़ की ओर से निकल के खड़ा था। कैप्टन ने कमाल बहादुरी से सबको वहाँ से निकाला और गाड़ी में भागते हुए जो वीडियो बनाई उसे मिलिट्री कैंप के सामने पेश किया, मगर बंद कमरों में बैठे जर्नल अब भी इस हकीकत को झूठ कह रही थी और नोरा के वालिद को पागल समझकर कैंप से बाहर धकेल दिया। नोरे ने फरियाद की कि उसे इस मखलूक को समझने के लिए कुछ वक्त दिया जाए, लेकिन वजीर आजम ने सख्ती से इनकार करते हुए कहा कि हमारे पास सोचने का वक्त नहीं, अगर हमने इसे ना मिटाया तो ये हमें मिटा देगा, अब फैसला बंदूकें करेंगे। नोरा ने हार नहीं मानी और कैप्टन से इल्तिजा की कि वो इसे अपने साथ मिशन पर ले जाए। कवानीन को पसे पुश डालकर कैप्टन राजी हो गया और वो सब उस जंगल की तरफ निकल पड़े जहाँ उस दियो हेकल की लोकेशन मिली थी। मैदान जंग सज चुका था और फोर्ट पोजीशन ले चुकी थी। इंतजार की इन भारी घड़ियों में नोरा के वालिद ने नम आंखों से अपनी बेटी से माजरत की कि वो उसे एक आम बाप की तरह प्यार और वक्त न दे सके, मगर नोरा ने उनका हाथ थाम कर कहा कि आप मेरे साथ हैं तो मैं अकेली नहीं हूँ। तभी दरख्तों को तिनकों की तरह तोड़ता हुआ वो आदमी सामने आ गया। इंसानों को देखकर वो एक पल के लिए रुका और कप्तान ने फौरन गोली चलाने का हुक्म दिया, मगर बारूद की इस बारिश का उस दियो हेकल पर कोई असर न हुआ। उल्टा उसका गुस्सा आसमान को छूने लगा। उसने बिफर कर हमला किया और कई फौजियों को कुचल डाला। नोरा, एंड्रियास और उसके वालिद एक चट्टान के पीछे पनाह लिए हुए थे। उनके साथ एक ईसाई फौजी भी था। पहाड़ी आदमी ने आगे बढ़कर उस ईसाई फौजी को सूंघा, उसे उठाया और निकल गया। नोरा के वालिद भांप गए कि ये मखलूक ईसाई मजहब के लोगों की बू पहचानती है। अपने सामने होते कत्लेआम को रोकने के लिए नोरा के वालिद चट्टान के पीछे से निकले और उस दियो के सामने खड़े होकर उसे पुरसकून होने का इशारा किया। हैरत अंगेज तौर पर वो पहाड़ी आदमी उनकी आवाज पर ठटक गया और उसका गुस्सा ठंडा होने लगा, लेकिन उसी लम्हे पीछे से नादान फौजियों ने दोबारा फायरिंग कर दी। वो दियो एक बार फिर आपे से बाहर हो गया और इस अफरा तफरी में उसका एक भारी हाथ नोरा के वालिद को लगा। वह शदीद जख्मी हो गए। पहाड़ी आदमी ने जैसे ही नोरा के वालिद की हालत देखी, उनकी आंखों में एक इंसानी अफसोस चमका और वो वहाँ से पीछे हट गया। नोरा रोती हुई अपने बाप के सिरहाने पहुंची, जो अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। उन्होंने मरते मरते नोरा के कान में 3 अल्फाज कहे, शाही महल और घर, और उनकी रूह परवास कर गई। नोरा का आखिरी सहारा भी छिन चुका था।
अगले दिन कप्तान ने नोरा को खबरदार किया कि हुकूमत अब इस पूरे जंगल पर होलनाक फिजाई हमला करने जा रही है। नोरा ने अपने वालिद के आखिरी अल्फाज की गिरह खोलने के लिए कदीम दस्तावेजात का सहारा लिया, जहां उसे पता चला कि इन पहाड़ी आदमियों को चर्च की घंटियों की आवाज से शदीद तकलीफ होती है, इसलिए वो चर्चों को निशाना बनाते हैं। नोरा ने कैप्टन की मदद से कमांडर को इस बात पे राजी किया कि ताकत की बजाय इस तरीके से तबाही को रोका जाए। प्लान के तहत उन्होंने शहर के एक बड़े चर्च की घंटियां बजा दी। आवाज कानों में पड़ते ही वो पहाड़ी आदमी तड़प उठा और दीवानावार घंटियां तोड़ने लगा। इस भगदड़ में एक मासूम बच्चा उसके पैरों के नीचे आने वाला था, मगर उस दियो ने कमाल रहमदिली से उस बच्चे को उठाकर महफूज जगह पे रखा, नोरा की तरफ एक गहरी नजर डाली और आगे बढ़ गया। ये प्लान भी नाकाम हुआ तो हुकूमत ने नोरा को मिशन से दूध में से मक्खी की तरह निकाल फेंका और पूरे शहर को खाली कराकर मिसाइल दागने का हतमी हुक्म दे दिया। एंड्रियास जब मायूस नोरा को गाड़ी में घर छोड़ने जा रहा था तो नोरा के दिमाग में वालिद का वो जुमला फिर गूंजा, शाही महल। वो गाड़ी का रुख मोड़कर सीधी पुरानी शाही महल पहुंची और वहां के बूढ़े वजीर आला से मिली। वजीर ने तारीख का वो सच उगल दिया जो किताबों में दफन था। उसने बताया कि सदियों पहले इस महल की जगह इन्हीं पहाड़ी आदमियों का मस्कन था और वो यहाँ के पहाड़ी बादशाह थे। ईसाई बादशाह ने चर्च की घंटियों के जरिए उनकी नस्ल का खात्मा कर दिया और सिर्फ एक छोटे बच्चे को तड़पने के लिए पहाड़ों की अंधेरी गारों में फेंक दिया। अब जो पहाड़ी आदमी बेदार हुआ है वो असल में वही बच्चा है जो सदियों बाद अपने पुराने घर की मिट्टी को ढूंढता हुआ यहाँ आ रहा है। वजीर ने उन्हें महल के तारीख खाने में ले जाकर उन पहाड़ी आदमियों के कदीम ढांचे दिखाए। नोरा ने जैसे ही एक ढांचे पर तेज टॉर्च की रोशनी डाली, वो पत्थर में बदल गया। नोरा को फौरन अपने वालिद की सुनाई 13 पहाड़ी आदमियों की कहानी का वो हिस्सा याद आया कि तेज रोशनी उनका जहर है, रोशनी पड़ते ही वो चट्टान बन जाते हैं। नोरा ने फौरन कैप्टन को फोन घुमाया और अपना आखिरी प्लान शेयर किया। उसने कैप्टन से कहा कि वो शहर से दूर एक खुले मैदान में बहुत बड़ा सोलर लाइट सिस्टम तैयार करे। दूसरी तरफ नोरा और एंड्रियास ने उस पहाड़ी बच्चे का ढांचा गाड़ी की छत पर बांधा ताकि वो पहाड़ी आदमी उस ढांचे को देखकर उनके पीछे मैदान की तरफ खींचा चला आए। रेडियो पर मिसाइल दागने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। नोरा का प्लान फेल करने के लिए फौज तैयार थी, मगर एंड्रियास ने अपनी एक हैकर दोस्त की मदद से फौज का पूरा मिसाइल सिस्टम ही जाम करवा दिया, जबकि मैदान में कैप्टन ने लाइट्स का जाल बिछा दिया। रास्ते में वो दियो कामिद पहाड़ी आदमी जैसे ही अपने बच्चे के ढांचे को देखता है, वो नोरा की गाड़ी के पीछे होल लेता है। नोरा ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी, मगर एक तेज मोड़ पे अचानक ब्रेक लगी तो वो नाजुक ढांचा जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गया। वो पहाड़ी आदमी अपने बच्चे की हड्डियों के ढांचे को टूटता देखकर वहीं घुटनों के बल बैठ गया और इंसानों की तरह धाड़े मार मार के रोने लगा। नोरा की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वो जान चुकी थी कि ये मखलूक जालिम नहीं बल्कि दुनिया की सबसे तन्हा और दुखी मखलूक है। मगर अपने बच्चे के नुकसान पर उस दियो का गुस्सा अब नोरा और एंड्रियास पे निकलने वाला था। वो दोनों जान बचाकर गाड़ी से कूदे और कैप्टन ने सोलर लाइट्स का स्विच ऑन कर दिया। मिलिट्री कैंप में जब तक हैकिंग का तोड़ किया गया, तब तक कमांडर ने देखा कि मैदान में उनकी अपनी जानदार मौजूद है, इसलिए उसने मिसाइल हमला आखिरी सेकंड पे रोक दिया। इस खुले मैदान में जैसे ही सूरज जैसी तेज मसनूई रोशनी उस पहाड़ी आदमी पे पड़ी, वो दर्द और कर्ब से चीखने लगा। उसका गोश्त और पोस्ट आहिस्ता आहिस्ता सख्त पत्थर में तब्दील हो रही थी। उसका ये तड़पना देखकर नोरा का सीना फट गया। उसे एहसास हुआ कि वो फितरत के एक मासूम शहकार को मिटा रही है, जिसने इंसानों का कुछ नहीं बिगाड़ा था। नोरा ने तड़प कर सोलर सिस्टम की तारें खींच दी, लाइट्स बंद की और इस दियो के सामने खड़ी होकर रोती हुई चिल्लाई, भाग जाओ यहाँ से दूर, उन्हीं तारीख गारों में छुप जाओ, वरना ये इंसान तुम्हें जीने नहीं देंगे। वो पहाड़ी आदमी नोरा की ममता भरी आवाज समझ गया, मगर फितरत का कानून अपना काम कर चुका था। रोशनी अपना असर दिखा चुकी थी और वो देखते ही देखते खामोश, बेजान और सर चट्टान में तब्दील हो गया। नोरा इस चट्टान से लिपटकर जोरों कतार रो पड़ी कि वो उसे बचा ना सकी।
कुछ देर में वजीर आजम और पूरी फौज वहां पहुंच गई। वजीर आजम ने नोरा के कंधे पे हाथ रखा और एतराफ किया कि उसके वालिद पागल नहीं बल्कि इस दुनिया के सबसे सच्चे इंसान थे। इस दर्दनाक वाक़ये के बाद एंड्रियास ने सरकारी फाइलें बंद की और नौकरी से इस्तीफा दे दिया ताकि वो दिल की आवाज सुनकर एक सच्चा मुसन्निफ बन सके। जाते जाते एंड्रियास ने नोरा की तरफ देखा और पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि इन गहरे पहाड़ों में अब भी कोई और पहाड़ी आदमी बचा होगा? नोरा ने आसमान की तरफ देखा, एक पुरस्कार मुस्कुराहट अपने लबों पर सजाई और कहा, कुछ भी हो सकता है। ये कायनात इंसानों की सोच से बहुत बड़ी है और इसी गहरे फलसफे के साथ ये दास्तान हमेशा के लिए अमर हो जाती है।